नहीं मम्मा। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग सेशन में। यहाँ पे हम कैरियर इन एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉस्पेक्ट हैं, किस क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या कंडीशंस हैं, जॉब प्रोफाइल या जॉब कंडीशंस क्या क्या हैं। अब एग्रीकल्चर में सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो फील्ड में काम करते हैं, खेतों में काम करते रहते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, यही काम नहीं है। सिर्फ एग्रीकल्चर का फील्ड ब्रॉड है और हमारी आज भी जो है लगभग 60% 60 to 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। So career in agriculture and forestry make up one of the largest industries and sources of long-term employment in the country, providing jobs for millions of Indians. These careers supply us with a multitude of food products and alternative energies, among many other important resources for sustaining our country and contributing to the world economy. अब इसमें एम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या क्या है, तो मेनी कैरियर्स इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री विल प्लेस वर्कर इन फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फार्म्स, hatcheries and nurseries. In addition, some carriers may place employees in wild environments that are involved in commodity production including forests, rivers, mountains and natural other areas. It is recommended that those seeking a career in agriculture and forestry enjoy working outdoors and are working with animals. जॉब आउटलुक क्या है एग्रीकल्चर में? तो जॉब आउटलुक ऑन careers in agriculture and forestry vary. The Department of Labor projects that agriculture career are on the growing overall. Many careers in forestry are projected to expand, though this growth is slower than average. क्या क्या career options हैं इसमें? So there are many different career options in the agriculture and forestry industry, ranging from more manual labor oriented positions to advanced scientific careers that require a great deal of education. अब कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या क्या है इसमें, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं? तो इंडिया द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर ऑलवेज डिमांड्स द नीड ऑफ क्वालिफाइड एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एज वेल एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Agriculture science deals with crop cultivation and harvesting, innovative technologies and environments in the farming method, designing advanced tools and equipment for farming, research and development of hybrid crops and genetically modified foods, and improving quality of the crop product, manufacturing effective pesticides and fertilization, and much more. This field is a broad spectrum of various sciences dealing with crop farming, forest development and conservation, agriculture biotechnology, agricultural technology, agricultural economics, plant breeding and genetics, seed technology, soil science and agricultural chemistry. मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें हम स्पेशलाइजेशन करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं. एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमको फील्ड में काम करना है. अब कैरियर इन एग्रीकल्चर आफ्टर ट्वेल्थ, दिस कोर्स प्रिपरेशन प्रिपेयर a student for a variety of career in agriculture after 12th, including animal husbandry, farming, agronomy or horticulture management. Agriculture courses include diploma, bachelor's and postgraduate degrees. In these courses, students learn the basics of agriculture and horticulture as well as teach how to run the business of agriculture. अब इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है कि देश जो हमारी कंट्री है उसकी जीडीपी में इसका कितना परसेंटेज है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है इस सेक्टर में, तो ये सभी है इनके. आप देखिए 2019 में लगभग 16% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहा है. कोर्सेज इन एग्रीकल्चर जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, तो सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हैं 10th और 12th दोनों के बाद आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अब ये 1 से 2 ईयर ड्यूरेशन होते हैं या 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए भी होते हैं. सर्टिफिकेट कोर्स इन एग्रीकल्चरल साइंस, सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, सर्टिफिकेट कोर्स इन बायो फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन. डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं. डिप्लोमा कैन बी डन आफ्टर कंप्लीटिंग 10th और 12th. टोटल ड्यूरेशन टाइम टेकन इन दिस कोर्स इज जनरली 3 years. डिप्लोमा 3 ईयर का होता है, but depending on the institute and course type, it can be anywhere between 1 to 3 years. अब diploma in agriculture and allied practices, diploma in food processing,
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बैचलर डिग्री है, जिसमें ज़्यादातर मतलब जॉब्स अवेलेबल होते हैं। तो दीज एजुकेशनल प्रोग्राम आर 4 years प्रोफेशनल कोर्सेज। फॉर दिस स्टूडेंट मस्ट हैव 10+2 पास साइंस स्ट्रीम इज़ रिक्वायर्ड। अब बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ साइंस इन क्रॉप फिजियोलॉजी, तो ये कुछ बैचलर डिग्री कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं और इनका ड्यूरेशन विथ एलिजिबिलिटी। अब बीएससी एग्रीकल्चर है, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर 4 year है, 10+2 विथ पीसीएम और पीसीबी। बीएससी सेरिकल्चर है, ये भी 4 year 10+2, सबकी एलिजिबिलिटी एक ही है। मतलब इसमें मैथ्स ग्रुप वाले और बायो ग्रुप वाले दोनों ही एलिजिबल हैं इनके लिए। बीएससी हार्टिकल्चर और सारे का ड्यूरेशन 4 year है। बीएससी फॉरेस्ट्री है, बीएससी कम्युनिटी साइंस है, बीएससी फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, बैचलर ऑफ साइंस फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। बीटेक एग्रीकल्चर है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। डिप्लोमा प्लस बीटेक इंटीग्रेटेड डिप्लोमा, अब ये 6 years का कोर्स होता है जो 10th के बाद ही पास विथ 60%, जिसमें आपको डिप्लोमा के साथ साथ इंजीनियरिंग की भी डिग्री मिलती है, बीटेक की भी डिग्री मिलती है। कैरियर्स प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं एग्रीकल्चर कोर्स करके? तो इंडियन सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, टेक्निकल राइटिंग में, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, हायर स्टडीज इन रिस्पेक्टिव फील्ड, कोऑपरेटिव सर्विसेज, एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म, कंसल्टेंट टू कॉरपोरेट, हायर स्टडी इन मैनेजमेंट, इंडियन आर्म फोर्सेस, एग्रीकल्चर रिसर्च, टीचिंग विथ एग्रीकल्चर कॉलेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, स्टेट सेंट्रल सिविल वेटरनरी सर्विसेज, एग्रीकल्चर पॉलिसी मेकिंग। स्पेशलाइजेशन क्या क्या है? तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, डेयरीज, फूड टेक्नोलॉजी, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, इंजीनियरिंग, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एजुकेशन, बायोकेमिस्ट्री, इंटोमोलॉजी, फ्रूट साइंस, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग एंड दीज आर द स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चरल साइंसेस एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या क्या हैं? जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एडमिशन के लिए बहुत सारे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक भी होते हैं। मतलब सबसे पहले तो नीट का होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन वेरियस कोर्सेज इन एग्रीकल्चर साइंस अक्रॉस कॉलेज इन इंडिया, कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो उसको कंडक्ट करती है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पैटर्न क्या होता है? तो टेस्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। इसमें 45 और 90 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 187 क्वेश्चन 720 मार्क्स के होते हैं। नोटिफिकेशन आता है इसका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ये आप देख ICAR AIEEE ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ये है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन होता है। ये भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वालों के लिए है। ठीक है, अभी इसका भी नोटिफिकेशन कब होता है दिया हुआ है। जी मेन पेपर 1 है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है JEE, तो फॉर एडमिशन इन बीटेक इन एग्रीकल्चर, बायोटेक, फूड टेक, डेयरी टेक कोर्सेज ऑफर्ड बाय स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स एंड अदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। अब ये इसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले हैं एलिजिबल। इसके पैटर्न भी दिया हुआ है आपको, 20+5 क्वेश्चन 20 पर ये है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इसका नोटिफिकेशन होता है। CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, डेयरी टेक, फूड टेक, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एट GBP, मतलब गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड। अब ये इसमें मेंटल एबिलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब ये PAUCET है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। और एडमिशन इन BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, सारे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, होम साइंस और मैथ्स, ये कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कैरियर इन एग्रीकल्चर क्या है? तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो after getting a degree from agriculture department, you can also prepare for a government job from this field and make career in agriculture after 12. You can apply for jobs in many department of government. For example, the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture, Research and Education, Department of Agriculture and Farmers Welfare can prepare for the job.
बैंक में भी है जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफिसर होता है. आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर यू कैन बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन द बैंक डायरेक्टली बाय टेकिंग द IBPS एग्जाम, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज एग्जाम है. In this, you have to pass the loan from the agriculture department, go to a different place. On this post, you will get good salary right from the beginning, which is good for future. Private or NGO job होता है. Nowadays, there are many big companies which are trying to improve the agriculture sector. Not everyone gets a government job, so a private job is also a good option. After studying in agriculture department, you can work in a good company and enhance your career in agriculture after 12th. टीचिंग फील्ड में भी आप जा सकते हो. आफ्टर डूइंग MSc or PhD in agriculture, you can also make a career by becoming a teacher. This is a good option for those who want to study in agriculture department and fulfill their dreams of becoming a teacher. This will help in the field of agriculture as well as your dream of becoming a teacher will also be completed. अब इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी आप देख सकते हैं. आप मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर आल्सो अवेलेबल इन दिस एरिया. After completing graduation in this field and with some experience, you can start your own business like agri-business, agro-products store, agro-industry, etc. Highly payment jobs भी हैं कुछ. Today, various employment opportunities are available for agriculture graduate candidates. This field can easily lead you to highly paid jobs and agriculture courses after 12. The agriculture sector offers job opportunities in horticulture, poultry, plant science, soil science, food science, animal science, etc. Other agriculture sectors that offer attractive returns including horticulture, dairy and poultry farming. After completing your postgraduate degree in agriculture, you can work as a supervisor, distributor, researchers and engineers. जॉब कैरियर इन एग्रीकल्चर, क्या क्या जॉब कैरियर हैं? तो आप क्रॉप स्पेशलिस्ट हो सकते हो, फर्टिलाइजर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फूड रिसर्चर्स, प्लांट जेनेटिसिस्ट, सॉयल सर्वेयर, फार्म मैनेजर, एग्रीकल्चर इंजीनियर, एग्रीकल्चर रिसर्चर्स. अब सैलरी पैकेज क्या है? तो इन आवर कंट्री ग्रेजुएट BSc और BTech फ्रेशर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर initially get an average of 18,000 to 25,000 rupees per month. Like all other fields, the salary package in this field depends to a large extent on the university or institute affiliated to the candidate's job role, skill and their bachelor's degree. After 4 year to 6 year of work experience, professionals in this field can get an average package of up to rupees 6 lakh to 10 lakh per year. Postgraduate candidate in this field initially take an average annual salary package of up to rupees 3.6 lakh and 4 year to 6 year of work experience can earn an average salary of 9 lakh to 6 lakh per year. अब सैलरी ऑफ रिसर्च प्रोफेशनल जो होते हैं, सिमिलरली रिसर्च प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड विद दिस फील्ड टेक एन एवरेज सैलरी ऑफ 55 to 80,000 per month. Apart from all these, after deep study in this field, a student can also start self-employment, which can earn a good income. At present, the state and the central government are also providing loans through self-employment to the youth through the bank, so that the young partners can create employment. अब देखिए टॉप 25 BSc एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ विच देयर रैंकिंग एंड एडमिशन प्रोसेस जो है ये आप देख सकते हैं. JB पंत यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक पे है. इस तरह से 25 ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंकिंग ये लिस्टेड है यूनिवर्सिटीज़. अब ये हार्टिकल्चर के फील्ड में है 25 यूनिवर्सिटीज़. यहाँ भी JB पंत यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक पे जो उत्तराखंड में है. टॉप 15 BTech डेयरी टेक्नोलॉजी है. इसमें ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल है जो फर्स्ट रैंक पे है. उसके बाद 15 BTech बायोटेक्नोलॉजी वाले यहाँ पे JP पंत यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में है. तो देखिए ये कैरियर एग्रीकल्चर के बारे में हमने ब्रीफ इसमें समझाया क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं आपका. और साइंस स्टूडेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट ही इसमें एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए. तो मतलब ये दिस इज़ द ब्रॉड फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़. हार्ड लेबरर से लेके साइंटिस्ट तक इस फील्ड में काम करते हैं. ठीक है. तो मतलब लगभग 60 to 70% पॉपुलेशन अभी भी हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. और इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, ब्रॉड हैं. आप
इसमें अलग अलग फील्ड में जो है आप अच्छा काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी अगर आपके पास आपको मतलब छोटे से फील्ड के भी अगर आप ओनर हैं तो अच्छा खासा इनकम आप कर सकते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद। इस सीरीज़ में मैंने कैरियर ऑन एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया। इस तरह से हम अलग अलग फील्ड में अलग अलग कोर्सेज़ को लेके आपसे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।